Do you know Dholera is the first greenfield smart city in India, and there's a lot of buzz around whether to invest in it or not. Today, I'm with Harneet Singh, the developer behind the Project 7 Wonders by KNT Group. Hi, I'm Karuna, and today let's have a conversation and understand why Dholera could be your next big investment. What made you decide Dholera? Dholera is the only city which is employment generating. Dholera is a 920 square kilometer of pre-planned area by central government and state government. But again, जब हमको ये शहर बसाना है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता, Dholera is 51% of stake is with state government and 49% stake is with central government. But Dholera is a 920 square kilometer. दिल्ली से भी बड़ा शहर बनाने का अगर गवर्नमेंट का प्लान है, I don't think उसमें कोई हमको क्वेश्चन होना चाहिए कि why Dholera? Why should an investor think about Dholera? Why not Dholera? But this is today's India, Narendra Modi's India. कम पैसों में ज्यादा कुछ मिल जाए, एक इंडियन की तो यही क्या है. Dholera में कोई रेरा नहीं है whether to buy a 500 square yard plot in Goa versus buying a 500 square yard plot in Dholera. What should be their choice and why? Do you know Dholera is the first greenfield smart city in India, and there's a lot of buzz around whether to invest in it or not. Today, I'm with Harneet Singh, the developer behind the Project 7 Wonders by KNT Group. Hi, I'm Karuna, and today let's have a conversation and understand why Dholera could be your next big investment. Hi, Harneet. Welcome to the podcast. Hi. Before we begin, मैं चाहती हूँ आप अपने आप को introduce करें. What have you done? I mean, tell us something about yourself. So, Karuna, first of all, thank you for calling me here today. Yeah. And my name is Harneet Singh, and it's been 16 years into this industry particularly. Real estate में गुड़गांव के अंदर मेरे को आज 16 साल पूरे हो गए हैं. Wow. It's from 2011 and till today we are here in Gurgaon, and everyone knows that कितना काम गुड़गांव में. गुड़गांव as a Gurgaon to Gurugram, we have seen the journey. So it's been quite a good time now. So now we are into real estate consultancy in Gurgaon, and we are into Ahmedabad as well. Okay. And we have opened now 2 branches in Gurgaon and in Ahmedabad, and sooner we are coming into more cities. Okay, great. तो हरनीत, I was just thinking about it. As you have mentioned कि आपने गुड़गांव में अपना बेस स्टार्ट किया in real estate as a consultant. तो जब आपने ये decision लिया that you want to be now a developer, what made you decide Dholera? और कोई आपने नहीं सोचा Bombay, since Noida is very famous for जेवर, तो क्या what made you decide that? So करुणा, इसके पीछे ना एक बड़ी शॉर्ट सी और अच्छी सी स्टोरी है. So जब हम 2011-10 में आए थे काम करने ना, so we have seen Gurgaon as a raw market for sales, as a sales point of view से. तो हमको ये लगता था कि यार हम इससे भी पहले क्यों नहीं आए, हमने और सस्ती लैंड या कुछ क्यों नहीं उठा लिया. करेक्ट. एंड अगर बात करें कि हम मुंबई क्यों नहीं गए या बैंगलोर क्यों नहीं गए या नोएडा क्यों नहीं गए, एंड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हैव ओपन्ड द ब्रांचेस इन डिफरेंट ऑफ दीज मेट्रो सिटीज. मेरे को ऐसा लगता है कि एक वो सिटी पकड़नी थी मुझे जो एक रॉ से शुरू हो रही है, because उसमें opportunity to raise money or to get money and to get appreciation is far more better than these cities. Okay. आज मुंबई में लगाना है तो मुंबई में already you'll get a good competition. You'll get a good competition. You'll get a higher price for land. Right. As a developer जब मैं सोचता हूँ तो I also want some lesser amount and a bigger land. Okay. So all right. कम पैसों में ज़्यादा कुछ मिल जाए, एक इंडियन की तो यही चाहे. Definitely. So इनमें धोलेरा again इसीलिए पर्पस से, एंड मोर ओवर धोलेरा का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है जो गुड़गांव से मैच होता है, दैट धोलेरा इज द ओनली सिटी विच इज एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड. ओह, ओके. सो मुंबई ऑलरेडी एक डेवलप्ड सिटी है. करेक्ट. पुणे इज ऑलरेडी डेवलप्ड. दे आर आल्सो एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड सिटीज. अगर हम आज की डेट में बात करें, जब मेरे पास एक्सपैंड करने का मौका आता है तो मेरे को क्या क्या ऑप्शन मिलती हैं. गोवा इज देयर, धोलेरा इज देयर, अयोध्या में आजकल बहुत डेवलपमेंट्स हो रही है. आफ्टर दैट राम मंदिर. एग्जैक्टली. अयोध्या राम मंदिर के बाद बहुत हाइप मिली मार्केट को. प्लस मोर ओवर सेलिब्रिटीज लाइक अमिताभ बच्चन ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. अच्छा. तो अयोध्या के अंदर बहुत बूम आ रहा था.
बट अगेन मैं वो एक सिटी नहीं चाहता था जो कभी टूरिज्म डिपेंडेंट सिटी हो, ओके, बिकॉज दैट इज अ लिटिल फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड मिल रही है लाइक वाइज गुड़गांव, तो आज हम, ये बहुत एक अच्छी लाइन है, आज हम नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया को छोड़ के आउटर एरियाज में रहने को पसंद करते हैं, Sure. बिकॉज इट्स अ डेवलप्ड एंड इट्स अ मोर प्लान्ड एरिया। राइट, दैट इज द ओनली रीजन फॉर कमिंग इनटू दुलेरा एज अ डेवलपर। करेक्ट। एंड आई थिंक जो आपने एक पॉइंट बोला कि सिक्लिकल नहीं चाहिए था, क्योंकि टूरिज्म बहुत सिक्लिकल है कि 6 महीने में भी टूरिज्म है और मे बी वेदर डिपेंडेंट है या कुछ है, तो फिर देयर अ ब्रेक कम्स। लेकिन Exactly. अगर एम्प्लॉयमेंट है, सो मोर चांसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल। एग्जैक्ट। आई थिंक गुड़गांव भी लोग इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि एम्प्लॉयमेंट बहुत है। ट्रू। मोर ओवर आपको इस बात में मैं ऐड करूंगा, एक टूरिज्म की भी दो कैटेगरीज हैं। वन इज अ फन एंटरटेनमेंट टूरिज्म लाइक गोवा, राइट, अनदर इज रिलीजियस टूरिज्म। रिलीजियस टूरिज्म में जब आप कुछ काम करते हो उस एरिया में, तो दैट इज नॉट दैट स्केलेबल, राइट, दैट इज नॉट दैट अप टू स्केलेबल। मतलब आप उसको एक हाइट्स पे नहीं लेके जा सकते जैसे मुंबई को ले गए, जैसे आप गुड़गांव को ले गए इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लाइकवाइज एवरीवन इज, आई बिलोंग्स टू अमृतसर, so ठीक है। Amritsar is always a tourism place. करेक्ट, फॉर So, द for गुरुद्वारा। Gurdwara, Golden Temple, Harminder Sahib, moreover the Wagah border, moreover the places nearby Amritsar. हाँ, So, but वो एक स्केलेबल नहीं है, वहाँ से एक इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट होता, एक लिमिटेड रेवेन्यू जनरेट होता है टूरिज्म से, राइट, जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस कहता है। बट एम्प्लॉयमेंट वी ऑल हैव सीन गुड़गांव, Yeah. एंड वो वाली बात है, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। राइट, तो मेरे को नहीं लगता कि आईटी जनरेटेड या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आने से जब आपको एक एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो नोएडा इज बेस्ड ऑन दैट एम्प्लॉयमेंट पार्ट, मुंबई इज ऑल्सो द मुंबई वाज द फर्स्ट इन इंडिया जो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री लेके आए थे। एंटरटेनमेंट, राइट, पुणे द लेटेस्ट वन, Yeah. हैदराबाद इज कमिंग अप, या, Bangalore again a good example, Chennai. So there are many cities which are employment based and they last for longer years. मतलब आप कोई भी सिटी जिसमें एम्प्लॉयमेंट या रोजगार आ चुका है, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको आप देखो, वो हमेशा ग्रो करें और उन्होंने एक अच्छी अप्रिसिएशन नहीं, मल्टीपल फोल्ड्स की अप्रिसिएशन दी है। करेक्ट, If we compare to the tourism cities. right. So as you rightly said that Hyderabad is really doing well, it's coming up a lot. Pune in fact is doing really well, I think tier 2 cities. Right. So why should an investor think about Dholera? Because Dholera के आसपास बहुत सारा noise है, confusion है, excitement भी है. So please tell us कि why do you think Dholera is the most upcoming place for real estate investment? So before answering this question, I would ask you why not Dholera? Because एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं, एक शहर को आपको अच्छा ऑल ओवर इंडिया आपको पता हो कि अगर कुछ प्लान्ड सिटीज हैं हमारी, तो वो कौन सी हैं? चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज द वन ऑफ द मेजर प्लान्ड सिटीज। राइट। चंडीगढ़ में एयरपोर्ट तभी आ गया था जब प्लान की थी? नो, नो, इट्स अ क्लियर आंसर, नो। सो कहने का मतलब है, जो हमारी प्लानिंग भी थी ना इंडिया की प्लान्ड सिटी के लिए, उसमें भी हमने बहुत सारी ऑल्टरेशंस बाद में करी है। बट दिस इज टुडेज इंडिया, नरेंद्र मोदी इज इंडिया। सो उसके अंदर आज अगर आप धुलेरा देखते हो, तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी ऐसे स्टार्ट होती है, जो इस क्वेश्चन का आंसर देगी व्हाई धुलेरा का। सो इट स्टार्टेड विद अ विजन ऑफ गेटिंग वन इंडस्ट्रियल हब और वन प्लेस दैट शुड बी अ ग्रीनफील्ड क्लीन लैंड एरिया, करेक्ट, ताकि हम उस पे अपनी इंडस्ट्रीज, हम अपनी आईटी एरिया, हम अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बसाना चाहें, एंड देन इवेंचुअली द डिमांड विल क्रिएट, एंड ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग हम रेजिडेंशियल भी उसको कर सकेंगे। राइट। सो धुलेरा इज ए 920 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ प्री प्लान्ड एरिया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कभी हम एक शहर बसाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। राइट। एंड वी ऑल नो दैट कि हम एक इंडिया में हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल कनेक्ट बहुत मेजर चाहिए होता है जब भी हमको कुछ एक डेवलपमेंट लानी है। राइट। इवन इंडिया का कहीं पे भी चाहिए होता है। हाँ। बट अगेन जब हमको ये शहर बसाना है, तो किसी को, ज़्यादा लोगों को नहीं पता, धुलेरा इज 51% ऑफ स्टेक इज विद स्टेट गवर्नमेंट एंड 49% स्टेक इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट। सो कल को अगर कुछ सरकारें चेंज भी होती हैं, तो उसमें अच्छा। क्या ऑलरेडी वो स्टेक है। ओके। तो उससे क्या होता है, जब न्यू गवर्नमेंट आती है तो उसको दिख रहा मेरा स्टेक है, तो वो रोकेगी नहीं, उसको ऑलरेडी उसका रेवेन्यू आना है, प्रॉफिट तो आना ही है ना। राइट। राइट। सो समवेयर अगर
सरकार चेंज होके आ रही है, उसको दिख रहा है आने वाले टाइम पे यहाँ से प्रॉफिट आने वाला, तो वो चेंज नहीं करेगी, कोई टेंडर्स को रोकेगी नहीं, कोई जो ऑलरेडी प्लेसमेंट्स डन हुई पड़ी है वो रोकेगी नहीं कॉन्ट्रैक्ट्स। राइट। सो दैट इज द मेजर रीजन धुलेरा ऊपर भी आएगा। इट्स अ प्लान्ड सिटी इन द वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑल्सो, अच्छा। कि मतलब ऑलरेडी कंपनीज को इन करना हमने शुरू कर दिया है। there are 6 regions which we have divided Dholera into. Town plannings कहते हैं जिसको हम। So from TP1 to TP6 we have planned it. गवर्नमेंट ने बहुत प्लान वे से इसको एक इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड सिटी बनाने का प्लान किया है। अच्छा। 920 स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया। अगर इसको कंपेयर करना चाहें तो दिल्ली ओनली दिल्ली पार्ट इज 714। अगर हम पूरा एनसीआर को बात करेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी समवेयर 1400। ओके। बट अगेन सिर्फ दिल्ली को करें तो 714 एरिया इज 714 स्क्वायर किलोमीटर इज विद दिल्ली। ऑलराइट। बट धुलेरा इज एन 920 स्क्वायर किलोमीटर, दिल्ली से भी बड़ा शहर बनाने का अगर गवर्नमेंट का प्लान है, आई डोंट थिंक उसमें कोई हमको क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाई धुलेरा। राइट राइट। और आई हैव हर्ड एंड आई वाज रीडिंग अबाउट इट कि धुलेरा में कोई रेरा नहीं है। सो व्हाट आई फील इज, जहाँ पे इन्वेस्टर का एक कंसर्न आता है कि अगर रेरा नहीं है, हाउ एम आई सेफ इफ आई एम डूइंग एन इन्वेस्टमेंट? सो व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द लीगैलिटी इन्वॉल्व्ड इन इट? सो मैं ये लाइन को पूरा सही नहीं कहूंगा कि इसमें रेरा नहीं है, धुलेरा में भी रेरा है। ओके। बट अगेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज इन धुलेरा। राइट। एक धुलेरा SIR है which government is planning, whole city is planning by is planned by government। उसका एक मैप निकला है, जैसे हमारे गुड़गांव का एक मैप है, मास्टर प्लान है। राइट। और ऐसे ही धुलेरा का एक मास्टर प्लान निकला कि हम इस साल में इतना इतना ग्रोथ करेंगे और सब कुछ है, वो प्लान है। राइट। एवरीवन आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगा। देन दिस अगेन आउटसाइड धुलेरा SIR। सो धुलेरा SIR की फुल फॉर्म है धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। राइट। उसके बाहर जो है आउटसाइड SIR कहते हैं, उसमें रेरा नहीं है। अच्छा। रेरा इज एप्लीकेबल इन धुलेरा SIR पार्ट, बट आउटसाइड एरिया वो रेरा के अंडर आता ही नहीं है, वो ओडा के अंडर आता है, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के। अच्छा। एंड फॉर दैट केस लोगों का क्वेश्चन हमको भी बहुत आ रहा है कि रेरा नहीं है, हमको घबराहट हो रही है, हमको क्या। करेक्ट। सी हाउ एम आई सेफ, हाउ इज माय इन्वेस्टमेंट सेफ इवन इफ आई एम पुटिंग इन सम मनी? तो मैं कैसे अपने आप को एक सेफ साइड पे रखूं दैट टुमारो इफ समथिंग गोज रॉन्ग मेरा पैसा सही जगह पे है? सो इसका एग्जांपल देता हूँ। गुड़गांव के बहुत पास एक Tier 2 सिटी थी भिवाड़ी। राइट। हाँ, तो भिवाड़ी में भी यही एप्लीकेबल था। जब रेरा नहीं था तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी, वो वहाँ पे UIT के अंडर आता था। अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भिवाड़ी के अंडर आता था। सेम वे में ओडा के अंडर आता है। अच्छा। सो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इज टोटली अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच गिव यू अ प्लान पास। आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं मेजर। फर्स्ट NA, जो हम गुड़गांव की भाषा में जिसको हम CLU कहते हैं, चेंज ऑफ लैंड यूज। ओके। लेट्स से एक एग्रीकल्चरल लैंड है, आपने उसका लैंड यूज चेंज किया, आपने उसको रेजिडेंशियल या कमर्शियल में कन्वर्ट किया, एंड देन यू कंस्ट्रक्ट योर ओन या डेवलप योर ओन प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। ओके। एट द सेम टाइम आप वहां पे उसको NA कहते हैं, विच इज अ नॉन एग्रीकल्चरल लाइसेंस। ओके। तो आप NA लाइसेंस सबसे पहले अप्लाई करते हो, देन यू गेट एन NOC फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो। राइट। एंड थर्ड वन इज द प्लान पास, जो आपने एक नक्शा बनाया कि आप ऐसी प्लॉटिंग या आप अपना ऐसा कोई वहाँ पे एक प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ODA उसको पास करती है। इफ दीज 3 डॉक्यूमेंट्स आर देयर, यू आर टोटली सेफ, नो नीड टू वरी। चाहे आप किसी से भी ले रहे हो, कहाँ से भी ले रहे हो, यू आर टोटली सेफ। और ऐसा नहीं है कि धुलेरा SIR के बाहर अगर कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा। गवर्नमेंट इज टोटली फोकसिंग ऑन दैट। गवर्नमेंट पूरा ध्यान रख के कर रही है। लेट्स से अगर मैं थोड़ी सी टेक्निकलिटीज में जाऊं, अहमदाबाद से जब आप धुलेरा आते हो तो धुलेरा SIR के अंदर 22 विलेजेस पड़ते हैं। करेक्ट। एंड उससे पहले कुछ विलेजेस ऐसे हैं जो SIR का भी पार्ट है और SIR के बाहर भी हैं। अच्छा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक गांव का बाउंड्री बिल्कुल SIR के साथ ही चले। राइट। कुछ पार्ट उसका बाहर भी है। लेट्स से बड़ा एक फेमस वहां पे एक गांव है या विलेज है, पीपली। पीपली इज द फर्स्ट डायमंड जंक्शन। जब अगर आप अहमदाबाद से आओगे, या क्लोवर लीफ फ्लाईओवर जो हमारे यहाँ पे गुड़गांव में यूज होता है वर्ड, वो वहाँ पे सबसे पहला फ्लाईओवर जो है विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑलरेडी, वहाँ पे आता है। वो पीपली पार्ट है जिसको हम पीपली जंक्शन भी कहते हैं या एयरपोर्ट जंक्शन कहते हैं। ओके। हाँ, सो गवर्नमेंट उस पर भी ध्यान दे रही है, ऐसा नहीं है। सिंस ये पूरा प्री प्लान्ड मेजर सिटी डेवलप हो रही है तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि गलत हो।
और उसमें कुछ अगर 1% की कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स NA, NOC एंड प्लान पास चेक करना है एंड यू आर टोटली सेफ, नीड नॉट टू वरी. All right. So in your project, are you giving all these documentation, everything you're complying with? Definitely. Right. No question in that. अच्छा, so and you know when I was reading about it, मैंने देखा कि ये इसकी जो planning है ढोलेरा की, वो करीबन 2008 2007 से है, लेकिन then कुछ हुआ, then it stalled, and now from 2018 Mr. Narendra Modi has really बहुत focus कर रहे हैं, बहुत development कर रहे हैं. Can you please enlighten us on that? So that's a very good question actually. So लोगों को ज़्यादा history नहीं पता, सबको लगता है ये नरेंद्र मोदी जी का विजन था. Oh, okay. So it started with Dr. Manmohan Singh actually. Oh, wow. So back in that time 2008 में Dr. Manmohan Singh ने एक प्लान किया कि he was at that time he was the Prime Minister of India. उन्होंने एक प्लान किया कि एक ऐसी सिटी बसाई जाए जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और जिसमें हम बाहर की कंपनीज को इन्वेस्ट करवाएं इंडिया में. FDIs. Foreign direct investments. Exactly. So जब 1992 में एज अ फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज कॉल्ड एज डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उनको इतनी प्रेज क्यों किया जाता है क्योंकि ये FDI वाला आप जो रूल था वो लेके आए थे एज अ फाइनेंस मिनिस्टर. So in the year 1992. Right. That is why Gurgaon came up. When he was a finance minister. Right. At that time हमारी इकोनॉमी क्राइसिस में थी, बट डॉक्टर मनमोहन सिंह के ये डिसीजन की वजह से काफ़ी हमारे इंडिया में जो ग्रोथ है कि उन्होंने बोला था कि हम बाहर की एक कंपनीज जो हैं वो अब इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं, बट ऑन अ रिस्ट्रिक्टेड डिसीजन या कंडीशंस कि आपको इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट में आना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर में आना पड़ेगा. लेट्स से कावासाकी एंड देन बजाज, कावासाकी बजाज, मारुति सुजुकी, इट्स अ बिगेस्ट एग्जांपल. हीरो होंडा. हाँ, मतलब Hero is motorcycles. Today it's motorcycles. At that time he was Hero cycles. So you're saying that a fusion of an Indian and a Western or maybe an abroad का जो brand है, Exactly. international brand, and they'll come in, ये होना जरूरी है. And why they came up with that joint venture part? क्योंकि over the period of time मेरी इंडियन कंपनीज भी सीख जाएंगी जो बाहर की कंपनीज के पास टेक्नोलॉजी है. Right. So नहीं तो अगर अकेले आके यहाँ पे इन्वेस्ट करके और करेंगे तो हमारी इंडियन कंपनी शायद नहीं सीख पाती. स्किल्ड लेबर नहीं है. एग्जैक्टली. तो वो स्किल्ड लेबर आज हमारी 1992 से आज हम 2022 तक आए हैं, तो उनको समझ आ गया कि 2008 में समझ आ गया था कि ये हमारा अब ग्रोथ होने लग गया है, एंड देन वी शुड गिव दैट एरिया सो दैट मोर कंपनी शुड कम इन. अब आज की डेट में लेट्स से टेस्ला आना चाहती है या एप्पल आना चाहती है, वी शुड हैव दैट एरिया टू गिव इट. इंफ्रा मोर ओवर इंडस्ट्रीज को सबसे पहले क्या चाहिए? वन विंडो क्लियरेंस. ओके. सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर. थर्ड इज जो हम एक शॉर्ट में बोल देते हैं प्लग एंड प्ले. जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक नेक्स्ट पार्ट है. करेक्ट. वन विंडो क्लियरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज एक इंडस्ट्री आती है वो परेशान हो जाती है अप्रूवल्स लेते क्योंकि डिफरेंट विंडोज दे हैव टू गो टू जहाँ से हमको अप्रूवल मिलेगा. सो धोलेरा फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ने ये क्लियर करा था कि हमको वन विंडो क्लियरेंस चाहिए. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मनमोहन सिंह जी ने 2008 में जब मीटिंग्स करी, सारे CMs को बुलाया जहाँ पे उनको लगा एक लैंड मिल सकती है, जिस स्टेट्स की लैंड. एट दैट टाइम नरेंद्र मोदी जी वाज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. करेक्ट. सो 2000 जब जैसे जैसे आगे बढ़े तो सरकार चेंज होगी, तो 2014 में जब हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई है, नरेंद्र मोदी जी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने यही सपने को अपना साकार करा. उन्होंने बोला दिस इज अ गुड वन, बट उन्होंने एक अच्छे लेवल पे उसको ग्रो करवाया, एंड देन एवरीथिंग उन्होंने प्लेस करी. जो हर्डल्स उनको दिखे पिछले 4-5 सालों में, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ उस फाइल्स पे जो मनमोहन सिंह जी ने निकाली, एंड कोई फंडिंग अलॉट नहीं हुई, कोई अमाउंट अलॉट नहीं हुई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो उन्होंने पूरा एक दे केम अप विद अ गुड प्लान इन 2014, एंड देन उन्होंने एक सबसे पहला एक मेजर डिसीजन लिया. उन्होंने एक प्लान बनाने के बाद, एक गवर्नमेंट जब डिज़ाइन करती है कि पूरे शहर को कैसे डिज़ाइन किया, तो इन्होंने एक UK की कंपनी को असाइन किया, दैट इज विद द नेम ऑफ हेल्क्रो. ओके. अगर आप गूगल करोगे तो आप सबको पता है हेल्क्रो ने क्या क्या बनाया. ओके. सो उसके बाद हेल्क्रो के डिजाइन होने के बाद 2016 में हेल्क्रो केम अप विद अ गुड प्लान, एंड ऑल द जोन्स की यहाँ पर रेजिडेंशियल रहेगा, यहाँ इंडस्ट्रियल रहेगा, विच वी सी ऑन द टेबल टुडे ऑन धोलेराज मैप. राइट. सो इसके बाद 2017 में एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई. अच्छा. और उस टाइम पे उसको फेजेस में डिक्लेयर किया गया कि विल नॉट कम अप विद द होल सिटी इन वन गो ना. सो हम फेजेस वाइज आएंगे.
तो फेज टिल TP2 दैट इज फेज 1, जहाँ पे आज टाटा की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, जहाँ पे रीन्यू आ चुका है, जहाँ पे ऑलरेडी L&T ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है. सो अगर आज की डेट में आपने पिछला क्वेश्चन पूछा था रेरा अगर अप्लाइड है, तो वो रेरा SIR के अंदर TP2 तक हमको आज भी मिल जाता है. आने वाले आगे वाले TPs में अभी रेरा भी नहीं मिल रहा हमको. आप अप्लाई भी नहीं कर सकते. ऑलराइट. सो टिल TP2 इज अ फेज 1 जो गवर्नमेंट ने 2017 में डिक्लेयर किया था, हम अगले 5 साल में बनाएंगे. तो 2022 में वो कंप्लीट हो गया. ओके, फेज 1. राइट, दैट इज टिल टाउन प्लानिंग 2. अच्छा. तो वाई हम धोलेरा आज की डेट में ज्यादा क्यों देख पा रहे हैं, लोगों को दिखने लग गया, क्योंकि 2018-19 तक थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखने लग गया था. एंड इन टुडेज डेट ऑल द रोड्स हैज बीन डन, कंप्लीटेड, स्ट्रीट लाइट्स वर्क डन, आपका प्लग एंड प्ले सारा अंडरग्राउंड सिस्टम है. Not even a single wire will be there in whole Dholera. Wow. Above the ground. That's amazing. So, from the sewage part to the water treatment plant part to the sewage treatment plant part to the pipelines of चाहे वो गैस की पाइपलाइन है, चाहे जो इंडस्ट्रीज के लिए इलेक्ट्रिकल पाइपलाइंस चाहिए, every damn thing is there and already constructed and delivered till TP2. Till TP2. हाँ, अभी भी गवर्नमेंट ने फॉर्मली उसको डिक्लेयर नहीं किया कि हमने फेज 1 डिलीवर कर दिया. Okay. That is why all the big companies wants to come in Dholera. Okay. और जब गवर्नमेंट ने 2017 में ये प्लान पास करा था कि हम अब ऐसा डिजाइन करेंगे, 450 प्लस कंपनीज ने ऑलरेडी अपना एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो कर दिया था, वी वुड लव टू कम इन. वाओ. और इसका एक छोटा एग्जांपल मोदी जी ने अपना पहले ही एक डिक्लेयर अपना दिखा दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन, विच इज नेम्ड एज गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर. राइट. और इसके लिए भी बहुत बज़ था. अ लॉट ऑफ बिल्डर्स हैव एस्टैब्लिश्ड देयर प्रोजेक्ट्स. कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट? सो गिफ्ट सिटी ज्यादा लोगों को नहीं समझ आया, जब तक समझ आया वो 10 साल में आप आ गया. और गिफ्ट सिटी इज वेरी स्मॉल सिटी. बहुत छोटा है. आई हैव सीन इट्स 6 स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली. वाओ. एंड वी आर गोइंग टू डिलीवर 920 स्क्वायर किलोमीटर. बट गिफ्ट सिटी अगर आप कभी गए हो या जिसने जो आई हैव सीन इट ऑन YouTube. आई विल बी ऑनेस्ट. अच्छा, यू हैव सीन ऑन YouTube. सो गिफ्ट सिटी के अंदर अगर कोई भी मतलब जो गुजरातीज हैं उन्होंने तो हमेशा देखा ही है, अहमदाबादीज जो हैं उन्होंने देखा ही है. बट गिफ्ट सिटी के अंदर जब भी आप जाओगे तो यू विल फील लाइक यू आर इन अ यूरोप, टोटली यूरोप. सो क्या प्लानिंग की, IT एरिया पूरा राइट साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में पूरा हमारा कमर्शियल एरिया रहेगा, सेंटर में पूरी हमारा कमर्शियल शॉपिंग मार्केट एरिया रहेगा, फूड कार्ट्स वगैरह या जो फूड जोन वगैरह बनाया प्रॉपर सेंट्रल में, इट शुड बी इक्विवेलेंट टू फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द गिफ्ट सिटी. देन रेजिडेंशियल एरिया, देन होटल्स, जो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल्स को एंटर कराया. सो इट इज वेरी वेल प्लान्ड एंड दैट्स अ स्मॉलेस्ट एग्जांपल व्हाट नरेंद्र मोदी जी कैन डू. Exactly. Yeah. And right now Gift City is absolutely operational. It's totally operational. आपकी IBM, Cisco, Oracle, IT companies, big major IT companies already there operational. Right. Banks, सारे banks, SBI बैंक, अभी recent Axis Bank ने वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करी है. Okay. SBI बैंक का ऑलरेडी सबसे जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पे गुजरात का. So multiple companies are already in and even they are looking for more property to buy in. So more land parcels. For more land parcels in Gift City. Right. But as an end user या as an investor, a small investor like me or like somebody जो मेरे पास investors आ रहे हैं, थोड़ा सा अब Gift City का एक प्राइस अप्रिशिएट हो चुका है. अच्छा. और एक टिकट साइज बढ़ चुका है. Right. तो अगर आज की डेट में किसी को Gift City में एंटर करना है तो he should come up with somewhere around 1.5 to 2 CR minimum. 1.5 to 2 CR is a minimum ticket range to enter into Gift City. Gift City in today's date. Right. So this would be commercial or residential? Both. You can go for it. मतलब उसमें आपको रिटेल में जाना है, कमर्शियल में या ऑफिस स्पेस में जाना है. So there are multiple options available from different developers. But yes, Gift City में appreciation आएगी, but not with that multiple folds जो पिछले 7 सालों 8 सालों में आ गई. And Gift City was established in which year? ये 2011-10 का प्लान था. अच्छा. They have delivered in 2018-19 में. अगर किसी ने Gift City को देखा और 2011 में देखा, इट्स अ ह्यूज मतलब ड्रास्टिक चेंज. मैंने 2011 में देखा है और मैंने 2019 में देखा है एंड देन मैं अब 2024 में गया, अभी रिसेंटली में गया. सो मैं कहता हूँ ऑफ द हुक. शहर बसाना किसको कहते हैं और प्लान्ड वे में किसको कहते हैं, आई हैव सीन. मतलब आफ्टर सीइंग चंडीगढ़ मुझे नहीं लगता था ऐसा शहर दोबारा बन सकता है. बट यस, इट्स अगेन मोर मिरेकल्स टू कम इन इंडिया. आई एम श्योर. एंड इन फैक्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन हैव टोल्ड मी कि गुजरात एक ऐसी जगह है wherein you don't feel you're a part of India. Exactly.
वो बोलते हैं कि even the people are very very kind, very nice, और even the infrastructure, it is so well planned that मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं गुजरात के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात पिछले 10 सालों से या 10 सालों से ज़्यादा से भी इट्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी जी. करेक्ट. सो वहीं से एक विजन दिख जाता है कि वो क्या बनाना चाहते हैं और कैसे गुजरात को करना चाहते हैं, तभी आपको एक फीडबैक अच्छा आता है. सो फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट टू द पीपल आर डाउन टू अर्थ, अनलाइक आर नॉर्थ इंडिया. राइट, वी आर हाई ऑन एटीट्यूड. मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा कमेंट, बट देयर इज अ difference I feel and I see in the people. Attitude में difference है मुझे different है लगता है. बिल्कुल अच्छा. And moreover Gujaratis are always business minded, Business oriented. and money making, Right. and so they are very well talented in this. हाँ मैं जी. कहूँगा आपको. And गुजरात का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो आप, जो गुजरात का आप अहमदाबाद शहर देख लो, और आप किसी भी जाओ, सो आपको कहीं ना कहीं कभी आप रेगुलर जाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा गुड़गांव आपको बुरा लगने लग जाता है. So I would say that ये it's all because of the government policies, Right. which they are putting in, and they are serious about it. And अगर आपको नहीं पता हो तो गुजरात ने या मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया विल अटेंड दिस 2036 ओलंपिक्स. वाओ. हाँ, इंडिया विल हैंडल दिस. तो 2036 तो में हम हम host इंडिया का करेंगे. फर्स्ट होस्ट करेंगे ओलंपिक्स, एंड दैट टू इन गुजरात. So we have that sort of an infrastructure They are कि हम आराम creating से it. organize. They are creating. They have it almost 50-70%, and then they are creating. So Harneet, as we were talking, Gurgaon is very famous for IT, manufacturing. तो जैसे कि आप मुझे बता रहे थे कि ढोलेरा में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लॉट ऑफ बिग इंडस्ट्रीज आर कमिंग इन. कैन यू टेल मी मोर कि किस तरीके का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या किस तरीके की इंडस्ट्रीज आ रही हैं? एंड रिसेंटली आई हैव आल्सो रेड that Tata has invested 91,000 crores there for semiconductors. So please tell us about that. So first of all, जैसे आपने गुड़गांव से पूछा कि गुड़गांव फेमस है IT एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए. जी. So गुड़गांव is a 10% of Dholera. I'll repeat this line. गुड़गांव is just 10% of Dholera because Wow. so Dholera जब हम पूरा प्लान करके देख रहे हैं, so first of all they are coming up with manufacturing companies. टाटा आपने नाम लिया है. सो टाटा से पहले, टाटा की तो अभी कंस्ट्रक्शन शुरू किया. टाटा इज अ मेजर बिग हिट फॉर धोलेरा. राइट. 91,000 करोड़ रुपीस. एंड ये सिर्फ टाटा नहीं है, इसमें टाटा ने सेमीकंडक्टर जो प्लांट लगाया है विद अ ताइवान कंपनी विद द नेम ऑफ फॉक्सकॉन, उसके साथ जेवी में आए हैं. एंड इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विल बी इन धोलेरा. So इससे पहले हमारे पास नहीं था कोई? अभी तक हम सेमीकंडक्टर प्लांट, हम जो सेमीकंडक्टर्स ले रहे थे हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे. सो अब हम एक्सपोर्ट करने वाली सिचुएशन में आ गए. वाओ. एंड दैट टू मार्च 2026 की डिलीवरी ऑपरेशनल होने की डेट है हमारे टाटा की. एंड देन इवेंचुअली आपको उसके अकॉर्डिंग और वेंडर्स मिलेंगे. एंड आई विल रिपीट अगेन, ये टाटा का भी फर्स्ट फेज है. So और phases हैं? और phases हैं, and will with a more money coming in. Wow. This is 91,000 crore rupees is first phase for Tata. My God. Tata has bought a good land bank, and अभी उन्होंने announce नहीं किया तो I'll also not announce that. Right. So मैं चाहता हूँ कि formally जो government की तरफ से आना चाहिए वो ज़्यादा better है. हाँ. टाटा ने अभी कंस्ट्रक्शन शुरू किया है, and टाटा की कंस्ट्रक्शन अगर आप कभी जाके देखोगे on a random day around 2 o'clock, around 200-300 cranes are there जो काम कर रही हैं. they are like going hell. मतलब सब फोकस छोड़ के मेरे को लग रहा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने वहाँ काम किया हुआ है. अच्छा. Moreover, Renew is already operational. They are solar panel manufacturing plant. Wow. गुड़गांव अगर कोई कनेक्टेड है तो हमारे साथ, जो हमारे गुड़गांव व्यूअर्स हैं, उन गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर Renew का अपना ऑफिस है. उन्होंने वहाँ पे आज से नहीं 1.5 साल पहले ही ऑपरेशनल कर दिया. Okay. मोर कमिंग इन, मोर ब्रांड्स कमिंग इन. तो लैंड सबकी हैं जो अभी फॉर्मली अनाउंस नहीं किया, बट जो हम बता सकते हैं, टोरेंट पावर इज ऑपरेशनल. अच्छा. सो लाइक जैसे हमारे दिल्ली में BSES है, तो टोरेंट पावर है वो वहाँ पे ऑपरेशनल है. अच्छा. अपने प्लांट्स एंड सबस्टेशंस के साथ. HP ने लैंड ली है. हमारे L&T के पास लैंड बैंक है. एंड समवेयर L&T थोड़ा ऑपरेशनल भी है, जो क्योंकि कुछ टेंडर्स STP के हाईवे के साथ साथ के वो L&T को गए हुए हैं. एंड अभी बड़े नाम्स लाइक अदानी, अंबानी, रिलायंस, करेक्ट, दे आर ऑल इन, बट
दे विल कम अप विद सम गुड न्यूज़ आफ्टर अ ईयर, क्योंकि अगले एक साल के अंदर हमारे पास धुलेरा में 3 बड़ी इंप्रूवमेंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे विल बी गोइंग टू रन, Oh, and that is a 100 kilometer of stretch, right. 110 exactly, and 250-meter wide road. Wow. It's a 250 meter. मगर किसी को कंपेयर करना है तो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे हमारा एज ऑफ नाउ इट्स अ 150 meter wide road. My God. So it's a 250 meter wide road. Wow. एंड दिल्ली जयपुर के बाद सबसे बड़ी अगर आज हम रोड्स देखते हैं या अगर हमने धुलेरा का प्री प्लान्ड वे में देखना है तो धुलेरा की इंटरनल रोड्स भी 55 मीटर और 70 मीटर की हैं. Like a normal neighborhood roads. लाइक अ नॉर्मल. गुड़गांव में 55 मीटर या 60 हमारे मीटर पास की वो है ही सबसे नहीं. बड़ी वाइड रोड, मैक्सिमम रोड है. Right. उसके बाद हम सीधा हाईवे डिक्लेयर कर देते हैं. Correct. लाइक सोना रोड इज 90 मीटर. अच्छा. अर्लियर हमारा NH8 भी जो NH48 जिसको हम आज कहते हैं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, इट वाज 90 मीटर बट नाउ इट इज गोइंग टू बी 150 मीटर वाइड. Right. बट धुलेरा एक्सप्रेसवे इज 250 मीटर वाइड, स्ट्रेट रोड. इट्स ऑल कनेक्टेड विद अहमदाबाद. जितनी भी हमारी इंप्रूवमेंट्स अब वही होगा जैसे हम पहले दिल्ली वाले लोग गुड़गांव ट्रैवल करते थे तो अहमदाबाद वाले लोग इन्हीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रैवल करेंगे धुलेरा के लिए, जितनी भी हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए. Okay. सो इवेंचुअली अभी जो कंपनीज हैं मेजर टाटा इज देयर, रीन्यू इज देयर, टोरेंट इज देयर, L&T इज देयर, हाँ जी. HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम इज देयर, हाँ. एंड मेनी मोर नेम्स. वेरी सून दे हैव टू कम. Right. दे विल अनाउंस इट वेरी सून. ओके. एंड जैसा कि आप बोल रहे थे कि वहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी जोरों से चल रही है, द रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड. मैं आपसे पूछना चाहती थी, यू जस्ट मेंशन अबाउट द एक्सप्रेसवे एंड द एयरपोर्ट. कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट इट कि धुलेरा में क्या कनेक्टिविटी रहेगी एंड व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल. द गवर्नमेंट इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू मेक इट अ हब फॉर कमर्शियल एक्टिविटी इन इंडिया. So this is a very important and very prime question of this podcast. So धुलेरा फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट क्या सोचती है. हम अभी क्या है, अभी तक हम जितना धुलेरा या सुन रहे हैं हाँ. जो डिफरेंट कम्युनिकेशन मीन्स से आ रहा है या हम अलग अलग माध्यमों से आ रहा है, दैट इज कि हम लोग क्या सोचते हैं धुलेरा या हम क्या बता रहे हैं. करेक्ट. बट लेट्स सी विद द फ्रॉम द आईज ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ने जब प्लान किया तो खाली शहर नहीं प्लान किया, उसको कनेक्ट करने का भी पहले प्लान किया जाता है. बिकॉज धुलेरा इज बेसिकली अहमदाबाद से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. और आज की डेट में अगर हम अहमदाबाद से धुलेरा आते हैं तो हमको कहीं ना कहीं 2 घंटे लगते हैं. अहमदाबाद से धुलेरा बाय रोड हमको 2 घंटे लगते हैं. एंड अब आने वाले टाइम पे हमारा एक सीधा अहमदाबाद से धुलेरा एक्सप्रेसवे बना दिया गया है. एक्चुअली अहमदाबाद से भावनगर एक्सप्रेसवे बना दिया गया है. सो धुलेरा इज अ सेंटर ऑफ अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर एंड बड़ौदा. Okay. So it is very well connected from all the 4 major cities of Gujarat. And then धुलेरा को इस हिसाब से बनाया गया that धुलेरा is connected to the whole world from air to sea, from road to rail. Correct. Mind it. So मुंबई के पास हम शुरू से सुनते थे सी पोर्ट था. हाँ जी. तभी वहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुरू से हमारे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द पार्टीशन जो हमारा शुरू से मुंबई वॉज अ फाइनेंशियल कैपिटल. बिकॉज वहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड अब सी के थ्रू भी होता था. एक मेजर हिट मिल जाता है उससे, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा और खुल जाता है. करेक्ट. सो धुलेरा में सबसे पहले जो एयरपोर्ट गवर्नमेंट बचा रही है, सो दैट इज इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट इंडिया जो कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है. वाओ. इवन इट इज बिगर फ्रॉम द जेवर एयरपोर्ट. ओह माय गॉड. सो जेवर एयरपोर्ट अभी तक सबसे बड़ा माना जाता था. या एंड अब जेवर से भी बड़ा है वो. और मुझे आई जस्ट वांट टू ऐड इन कि सिंस जेवर हैज कम, there's a lot of noise around Noida's real estate कि suddenly Yamuna Expressway is taking up. Exactly. So is it कि मैंने ये देखा कि the moment an airport comes वहाँ पे real estate बहुत बढ़ जाता है. बहुत बढ़ जाता है. आप मतलब एक मेरे फादर क्या करते थे कि एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में कहीं में भी ले दो पूरे इंडिया में, आप हमेशा ऊपर होगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. As an investor. As an investor. Right. So वो तब सोचते थे जब वो उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह ज्यादा नहीं पता था, तो उनके लिए एयरपोर्ट एक मेजर हिट होता था उस टाइम पे. सो आज हमारे लिए कहीं ना कहीं एयरपोर्ट भी एक नॉर्मल होता जा रहा है एक आने वाली जनरेशन के लिए. हमारे लिए जो मेजर हिट है दैट इज जो हमको एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके देगा या रेवेन्यू जनरेट करके देगा गवर्नमेंट को उस सिटी से या उस शहर से. दैट इज ओनली एंड ओनली वन थिंग इज देयर, एम्प्लॉयमेंट. करेक्ट. चाहे वो एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आ रही हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट ITSC से आ रही हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हमारे मल्टीपल सोर्सेज डिफरेंट वेज से आ रही हो, टूरिज्म से आ रही हो. सो गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान किया है. सबसे पहले इन्होंने कनेक्ट किया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटीज से या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से धुलेरा को. देन दे आर कमिंग अप विद द सेकंड प्लान जो अभी किसी को ज्यादा नहीं पता. लोग अभी धुलेरा पूछ रहे हैं
but there is a upcoming new area that is coming up with the name of Lothal. Lothal. हाँ, it's very near to again Dholera and it's a part of Dholera again. लोथल में एक हेरिटेज मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बनाया जा रहा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम है एंड Wow. अभी तक हम सोच रहे हैं अब बनेगा या कुछ करेगा. 90% वर्क हैज बीन डन. Wow. गवर्नमेंट वहाँ पे टूरिज्म का भी प्लान कर रही है Hmm. विच विल अगेन बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ धुलेरा. Hmm. सो अब एक नेक्स्ट टॉपिक लोथल छिड़ जाता है, तो लोथल में भी अब नई और इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं. अब लैंड्स और महंगी होती जा रही हैं. अच्छा. So more in a detailed version I'm going into Dholera, more deeper I'm going into Dholera, I'm getting more knowledge about Lothal again. Okay. So Lothal में भी again अब बहुत ज़्यादा चहल पहल आ गई है अच्छा. from last 6 months. Right. So अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने रोड कनेक्ट कर दी, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर दिया. We all have seen दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर coming up, भारतमाला प्रोजेक्ट का पार्ट है ये. Correct. सो दिल्ली और मुंबई को इंडस्ट्रियल, व्हाट इज DMIC, दिल्ली और मुंबई की इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट जितनी भी है Right. उसके लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई Right. वाया राजस्थान एंड गुजरात. Correct. जब गुजरात से ये जाता है तो बड़ौदा के थ्रू होके जाता है एंड दे हैव कनेक्टेड धोलेरा एक्सप्रेसवे डायरेक्टली विद DMIC वाया पीपली वटामान हाईवे. Okay. सो अगेन पीपली वटामान हाईवे जो मैंने आपको पहले नाम लिया था, पीपली जंक्शन है, ये वहाँ से कनेक्ट डायरेक्ट रोड कनेक्ट कर रही है. एंड मैं लास्ट टाइम जब गया हूँ तो वो 4 लेन रोड थी विच इज गोइंग टू बी 6 लेन रोड इन जस्ट 2 to 3 months. Wow. सो गवर्नमेंट इतनी प्लानिंग है. सो दिस इज वन रोड नेटवर्क. देन यू आर विद रेल नेटवर्क. गवर्नमेंट बुलेट कॉरिडोर पहला ला रही है एंड दैट टू फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई. Wow. एंड And I read about it. yes, 80% जिसका काम हो चुका है एंड दैट विल एक्चुअली बूम द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. क्योंकि Wow. अगर किसी ने बुलेट कॉरिडोर सबसे पहली बार जापान में आई थी, Correct. ओटावा से जापान जो अपना टोक्यो से आई थी, अगर आप वो पूरी बेल्ट देखोगे जहाँ पे बुलेट कॉरिडोर चल रही है, वो जब पहले थी और आफ्टर द बुलेट कॉरिडोर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द इकोनॉमी ऑफ दैट जापान एरिया. That's true. जो वो पूरी बेल्ट एक आपकी ट्रेडर्स बेल्ट बन चुकी है. द बिजनेसमैन आर पुटिंग मनी, द ऑल द बिग कंपनीज आर पुटिंग मनी ऑन दैट बेल्ट, क्योंकि उनको अब सब कुछ एक ट्रांसपोर्टेशन का ईजीएस्ट वे मिल गया. Wow. सो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल रहा है, तो एक जो बिजनेस ओनर है या जो एक कंपनी का ओनर है उसको जल्दी पहुंचने में, आज मेरे को भी धुलेरा जाना है या अहमदाबाद जाना है, तो मुझे पता सुबह 1.5 घंटे की फ्लाइट है. यहाँ से यहाँ अहमदाबाद. से अहमदाबाद 1.5 घंटे की फ्लाइट लगती And वहाँ से अहमदाबाद to अहमदाबाद Dholera से- you will go by road. है. For Today- now. हाँ, आज की डेट में हम अभी बाय रोड जा रहे हैं, बाय हाँ कार जी. अपनी कार से जाते हैं, 2 हाँ. घंटे लगते हैं. Okay. बट सूनर और लेटर इन वेरी वेरी लिटिल स्पैन ऑफ टाइम आपको अगले 45 मिनट में आने वाले टाइम पे आप अहमदाबाद से धुलेरा पहुंचते हैं. That's fantastic. सो रेल, रोड, देन एयरपोर्ट गवर्नमेंट बना ही रही है. कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रही है, फुल स्विंग. तो गवर्नमेंट ने मार्च 2026 की डेडलाइन दी हुई है. Wow. एंड इवन जो हमको अभी सोर्सेज से सुनने में आ रहा है कि टाटा उनको पुश भी कर रही है कि और जल्दी बना दो, सो दैट कि उनको एक पुश मिल जाता है उनकी इंडस्ट्री के लिए. Hmm. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो Hmm. सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था, जो इनको सी पोर्ट चाहिए था, Correct. तो ऑलरेडी पिपावा के नाम से भावनगर में सी पोर्ट है, वहां से हमारे को धोलेरा का एक मेजर पुश मिल जाता है सी पोर्ट का. तो जब सी पोर्ट आप जाते हो तो खाली आप इंडिया में नहीं कनेक्ट करते हो, तो आप वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करते हो एयरपोर्ट से और सी से. Correct. रेल नेटवर्क और जो रोड नेटवर्क है वो हमारा इंटरनल डोमेस्टिक नेटवर्क को कनेक्ट करने में, सिटीज को कनेक्ट करने में ज़्यादा मेजर हेल्प करता है. Hmm. बट जो एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट है, दैट इज अ मेजर हिट फॉर ग्लोबली गेटिंग कनेक्टेड. Right. सो Right. ये धुलेरा को बहुत प्राइम बनाता है. ये हमने गवर्नमेंट की नज़र से धुलेरा को अब आज अगर ढंग से देखा जाए तो ये है. Okay. यस, गवर्नमेंट टाइम ले रही है, एक शहर को बसाने में टाइम लगता है. Hmm. एक जो लाइन्स है, लोग कह रहे हैं 2 गुना हो जाएगा पैसा, 4 गुना हो जाएगा, नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा. अच्छा. यू हैव टू हैव पेशेंस. आपको एक शहर को बनते हुए टाइम देना पड़ता है. आई वुड से मिनिमम 5 years. यस, 2-3 साल में कोई लोग कह रहे हैं बहुत सारे कुछ MLM स्कीम्स चल रही हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आ गए, हम आपको एश्योर्ड रिटर्न दे देंगे. सो आई वुड सजेस्ट ऑल द व्यूअर्स कि आप इन सब चीज़ों में ना जाओ, rather than go for a good product and that too with a good location. Correct. क्योंकि अभी शहर बस रहा है, तो अभी तो धुलेरा के नाम पे वहाँ पे 3 लाख का भी प्लॉट बिक रहा है और धुलेरा के नाम पे वहाँ 40 लाख का भी प्लॉट बिक रहा है. Right. Right. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे अभी आप ये नहीं देख रहे कि लोकेशन क्या है, Right. बट जब वो गुड़गांव गुरुग्राम बन जाएगा, हम उस दिन, या जब धुलेरा एक एज अ धुलेरा
स्मार्ट सिटी बन जाएगा, उस दिन हम पूछेंगे आप हाईवे से कितना अंदर हो, एक्सप्रेसवे से कितना अंदर हो, या आपकी कितने मीटर वाइड रोड है। राइट, आज अभी कोई नहीं पूछ रहा, आज अभी सिर्फ अमाउंट चेक करी जा रही है। करेक्ट। सो आई वुड से कि धुलेरा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक मेजर वास्ट टॉपिक है, जो सिर्फ खाली वीडियोस में देख के नहीं समझ आएगा। यू शुड गो देयर, आपको जाके ऑन साइट देखना चाहिए, आपको विजिट करनी चाहिए, किसकी लोकेशन बेटर है, करेक्ट, किसका क्या प्रोजेक्ट अच्छा है, या गवर्नमेंट की क्या क्या प्लानिंग्स हैं वहाँ पे लाने की। ये तो अभी कुछ हम जो चंद मिनटों में बता पा रहे हैं, ये वो चीज़ें, बट Correct. देयर इज अ ह्यूज डेवलपमेंट कमिंग एंड ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमिंग इन। राइट, ऑलरेडी गवर्नमेंट अंदर TP2 तक, फेज 1 तक अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर चुकी है। गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग रेरा अप्रूवल टू एनी न्यू प्रोजेक्ट कमिंग इन फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल, बिकॉज गवर्नमेंट अभी पहले डिमांड क्रिएट करवाना चाह रही है, इंडस्ट्रीज को पुश करना चाह रही I है। एंड understand. देयर आर डिफरेंट जोन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग IT इंडस्ट्रीज, देयर आर डिफरेंट जोन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और एक अच्छी बात कहूँ कि सारी इंडस्ट्रीज को वो चूज किया जा रहा है वहाँ पे, चाहे वो लॉजिस्टिक्स कंपनी आएगी, राइट, चाहे सेमीकंडक्टर कंपनी आएगी जो Right. मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चाहे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आएगी, बट 0% एमिशन, मतलब 0 पॉल्यूशन कंपनीज रहेंगी। वाओ, सो आने वाले टाइम पे ऐसा नहीं होगा जैसे हम दिल्ली और मुंबई में पॉल्यूशन देख रहे yeah, हैं, it's तो bad. वो पॉल्यूशन नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट, और हम सब ये शहर बनाने के बाद हम एक चीज भूल जाते हैं, हम जो नेचर को हर्ट करते हैं, Correct. बट गवर्नमेंट ने उस पर भी पूरा ध्यान दिया हुआ है, गवर्नमेंट उसको भी नहीं करेगी। I think that's why the smart city, green smart city, so they are Greenfield taking smart. care of the environment, that you should not, in any way harm एग्जैक्टली। the nature. मोर ओवर एक बहुत बड़ा, अगर किसी ने, सबको ये पता है 920 स्क्वायर किलोमीटर का धुलेरा है, हाँ जी, बट किसी को ये नहीं पता कि डेवलप्ड कितने एरिया में हो रहा है, ज्यादा लोगों को नहीं पता है। correct. तो ओनली 422 स्क्वायर किलोमीटर इज गोइंग टू गेट डेवलप्ड, And rest? रेस्ट इज ऑल ओपन एरिया, Wow. सो ग्रीन एंड लो कोस्टल लाइन एरिया, सो इट विल बी ऑल डेवलप्ड। तो अगर हम कहीं एक जगह पे पोल्यूशन देखते हैं, तो उसका एक मेजर रीजन ये भी होता है कि हम एक जगह पे हमने ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक इंडस्ट्रीज कर दी हैं। Congested कर देते Congested कर हैं. देते हैं, And that's why it's not planned. जो That's why. हम कभी-कभी गुड़गांव में भी देखते हैं, मुझे लगता है कि we lack big time on planning. एग्जैक्टली, एक जगह स्कूल है, वहीं पे मतलब एक ही रोड पे 4 स्कूल्स हैं, and I find that it's not good for us. इट्स नॉट गुड फॉर एक्चुअली। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप रहते हो तब समझ आता है। करेक्ट, जब बसावट हो जाती है आपको लगता है यार जगह ही नहीं है, Yes, यू आर स्टक इन ट्रैफिक. more or less like IMT Manesar. It's a all planned industrial hub, करेक्ट, but Cyber City is not well planned. राइट. Cyber City is planned, but government ने एक ही जगह पे सारी employment डाल दी। So वो शाम के टाइम पे हमेशा हम दिल्ली से गुड़गांव जाने या गुड़गांव से दिल्ली जाने वाले रोज साइबर सिटी पे स्टक होते ही होते हैं। तो आर यू सेइंग इन ढोलेरा दिस विल नॉट बी द प्रॉब्लम? It will be equally planned, और जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज होंगी वो मेजर रोड्स पे होगी, 55 मीटर या 70 मीटर की रोड पे। तो आप ये बोल रहे हो कि अगर हम ढोलेरा में, जैसे आज हम गोल्फ कोर्स रोड या साइबर सिटी को देखते हैं, इन प्रोबेबली 1995 हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, Right. लाइक बिकॉज आई एम बोर्न इन दिल्ली, Hmm. तो मैं जब इस साइड पे आती थी मुझे लगता था क्या जंगल है यार. Hmm. तो अगर आज मैं देखती हूँ, तो आई वुड हैव नेवर इमेजिन कि गुड़गांव विल लुक लाइक दिस फ्रॉम 1990s True. to now in 2025. तो are you saying it will be better than Golf Course Road, Cyber City, Dholera in the coming times? Definitely, there is no question in that. मतलब मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ की प्लानिंग बेकार है, बट ये प्लानिंग भी जो हमारी गुड़गांव की प्लानिंग है, Right. वो 1990s में हुई है, हाँ, जो मेजर प्लानिंग्स हुई। correct, हमारा 2004 में तो पहला हमारा मास्टर प्लान निकला था गुड़गांव का। right, हाँ, ज्यादा लोगों को वो भी नहीं पता। Exactly. 2004 में सबसे पहला मास्टर प्लान निकला था हमारा गुड़गांव का, हाँ. बट अगेन वो तब की प्लानिंग है, उस दिन के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो सोचा था वो अगला, आज हमने एक जनरेशन पार कर ली है, बट आज की डेट में जब इंडिया के पास सारी इकोनॉमी बूस्ट है, हम हाईली मोटिवेटेड हैं, इंडिया इज इन गुड हैंड्स विद द गवर्नमेंट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेशन अच्छा है, आपके पास सारी टूल्स हैं जो आप कर सकते हो कंस्ट्रक्ट, सो इवेंचुअली अगले 100 साल तक के लिए काम किया जा रहा है। that is so nice. सो ये दैट Right. इज व्हाई धुलेरा इज on the higher end. Okay, so this is for my investors who are watching this podcast. Hmm. What type of an ROI can I expect? Number one. Hmm. What should be the ticket size of my investment? कि मेरे पास how much money do I need कि मैं आज ढोलेरा में enter कर सकूं, और जब मैं, तो ROI किस हिसाब से मैं देख सकती हूँ? What should be my टाइम होराइजन, मैं कितने साल उस पे बैठूं, क्योंकि उसको लेके भी काफी कंफ्यूजन है, बिकॉज मेरे कुछ इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि करुणा
15-20 साल लगेंगे, उससे पहले तो हम्म। बस हम फाइल क्लोज करके बैठ जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट वेरी, कभी कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं वो इतना। और एक चीज मुझे आपसे ये पूछनी थी कि ए द टाइम पीरियड, बी रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करें कि या कमर्शियल में इन्वेस्ट करें? सो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वैसे बताता हूँ, मैं दोनों पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, रेजिडेंशियल कमर्शियल, हाँ। बट आई एम अ लिटिल मोर कमर्शियल गाय। हाँ सो मेरे को थोड़े से आरओआईज और फाइनेंशियल कैलकुलेशन ज़्यादा समझ आएंगी, जी, या मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा झुकाव रखता हूँ रदर देन रेजिडेंशियल। बट ऐसा नहीं कि रेजिडेंशियल में ज़्यादा अच्छा मनी है या कमर्शियल में। बट हम पहले एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि कितने पैसे लगाने चाहिए, कि क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। बहुत क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन है इस टाइम पे। करेक्ट। सो अब मेरे पास भी आते हैं कि अभी 15-20 साल लगेंगे, हम बाद में लगाएंगे। हाँ जी। सो आई वुड से कि पहली बात तो ये 15-20 साल तो शहर बस ही जाएगा। वाओ। सो गुड़गांव का मास्टर प्लान है वो 2031 का है। करेक्ट। बट हम ये अगर 2031 का मास्टर प्लान देखते हैं तो क्या आज हमारे पास गुड़गांव की एप्रिसिएशंस नहीं आई? बिल्कुल है। सेम वे में दुलेरा का मास्टर प्लान है 2041 का। 2041। इट्स 2041 जो मास्टर प्लान गवर्नमेंट ने निकाला है। ऑब्वियसली 2031 हमारा जब गवर्नमेंट प्लान करती है तो उससे पहले ही बसावट हमारे लिए ऑलमोस्ट आ चुकी है। हाँ जी। हम जो मेजर हिट देख रहे हैं, अब हमारे जो बचे हुए एरियाज हैं गुड़गांव में, उसमें आना है। हाँ। सेम वे में 2041 तक तो हमारा पूरा शहर बस जाएगा। राइट। सो वी आर जस्ट 15 ईयर्स बिहाइंड। वाओ। 15 साल में तो आप पूरी डेवलपमेंट, पूरा शहर बसा हुआ देख लोगे। मतलब पीपल विल बी स्टेइंग देयर ऑलरेडी। एग्जैक्टली। तो यू एज एन इन्वेस्टर इफ यू आर थिंकिंग, you should be in, you should be investing in Dholera at this point of time. यू आर सेइंग कि राइट नाउ इज द टाइम, Exactly. नॉट 2 years लेटर कि चलो जब थोड़ी बसावट हो जाएगी। बसावट प्लस मैंने जो आपको पहले एक क्वेश्चन का आंसर दिया था, जब सबको समझ आ ही जाएगा तो आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको नहीं मिलता। करेक्ट। अभी भी वो टाइम है कि जिसमें हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस मिल सकते हैं और मिल भी रहे हैं। इवन राइट। मेनी पीपल हैव इन्फॉर्म्ड मी कि यार हमको ये फायदा हुआ है अभी। करेक्ट। पिछले अगर किसी ने 2019 में, 2020 में, 2021 में किसी ने पैसा लगाया धोलेरा में, सो दे हैव गिवन अ गुड 3 to 4 times ऑफ ROI। बट Correct. यस, आने वाले टाइम पे, अभी अगले वाले टाइम पे, मैं ये नहीं कहता अगले 2 साल के अंदर आपकी डबल हो जाएगा या 3 साल का हो जाएगा। एक एज अ एक प्रॉपर एक सिनेरियो बताऊं तो आपको मिनिमम 5 साल तो वेट करना चाहिए। 5 साल। बट अब लोग पूछते हैं फिर पैसा कितना लगाएं, 5 साल करेक्ट। क्यों वेट व्हाट करें, शुड बी क्या द करें? एंट्री के लिए क्या टिकट साइज हमें चाहिए इफ वी वांट टू इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट? So first of all, my entry ticket size is 11 lakhs. करेक्ट। It's a very smallest investment. बिल्कुल। बट मैं ये कहूँगा, कई लोग कहते हैं कि यार इससे भी सस्ता मिलेगा हाँ जी। आपको, मेरे को वहाँ अच्छा मिल रहा है, मैं किसी से कनेक्टेड हूँ। हाँ। Obviously there are multiple people working in and there are multiple projects and options available. हाँ। मैं ये कहूँगा इन्वेस्टर को एक सरल भाषा में उतना लगाओ जितने में रात में नींद आ जाए, जी। so that you should not worry. हाँ। एंड आप मिनिमम 4 साल तो दो ही दो। ऐसा नहीं कि 3 साल में बिकेगा नहीं या 2 साल में बिकेगा नहीं, बट आपको मिनिमम 4 साल देने पड़ेंगे, क्योंकि अगले 2 साल के अंदर 2 मेजर हिट्स हैं, टाटा एंड एक्सप्रेसवे। टाटा एंड एक्सप्रेसवे। ये दोनों मेजर हिट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट में बहुत, आपको अप्रिसिएशन लाने में बहुत हेल्प करेंगे। राइट। द मोमेंट टाटा विल गेट डिलीवर्ड, आपकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी, जो लोग वहाँ वर्किंग होंगे उनको भी तो घर चाहिए। करेक्ट। एंड SIR के अंदर जब आज गवर्नमेंट ने पोजीशन ओपन कर ही नहीं रखी, अभी कोई सप्लाई, अभी आपको कोई सप्लाई मिलती ही नहीं है, तो इवेंचुअली आप बाहर वाले एरियाज में आओगे। फिर उस दिन लोकेशन मैटर करेगी कि आप कितना हाईवे के पास हो, कितना हाईवे के पास हो, एक्सप्रेसवे के पास हो, करेक्ट। ताकि टाटा वाला एक एम्प्लॉय को बाहर निकलने के बाद कहीं अंदर ज्यादा दूर ना जाना पड़े, या जिस पे अभी रोड ही नहीं है वो ना जाना पड़े। लाइक इफ आई एम वर्किंग इन साइबर सिटी, आई वुड लव टू वर्क स्टे इन DLF phase 3 या Eventually. सराउंडिंग एरियाज, ताकि Eventually. मुझे ये टू नॉट गेट स्टक इन द यू नॉट ट्रैफिक। गो इनसाइड द रोड, मतलब इंटरनल रोड्स पे आप नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि वहीं Correct. पे मेजरली एक सिटी का ट्रैफिक हो जाता है। like how in अगर मैं वन होराइजन में काम कर रही हूँ, if I'm staying in Camellias या if I'm staying in golf course road, तो लोगों को ये बहुत कन्वीनियंट लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। सो इस केस में जो लोकेशन मैटर करती है वो बहुत प्राइम होएगी। आपका टाटा आ गया, आपका एक्सप्रेसवे आ गया, तो ये आपको मेजर हिट 2 साल में आएगा। 2 साल के बाद जो मेजर अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, Right. जो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो निकलने की कोशिश करेंगे। राइट। देन जो होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं ज्यादा की, वो असली अर्न करेंगे 4 साल के ऊपर। करेक्ट। और थोड़ा सा आपको एक पुश दिखेगा कि हाँ यार, जिन्होंने भी पैसा लगवाया, बीट मी, बीट एनीवन एल्स, तो उनसे आप फोन पे बात करके बोलोगे कि हाँ यार आपने सही जगह। करेक्ट। जी, ये सिनेरियो।
सो इफ आई एम पुटिंग इन लेट्स से सबसे मिनिमम आपके प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि मैंने 12 लाख रुपए करीबन लगाए, तो मैं 5 इयर्स के बाद क्या आप मुझे एक नंबर दे सकते हो कि किस तरीके की ROI कैन आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट? मोस्टली ये लोग कतराते हैं आंसर देने में कि हाँ हाँ जी। मैं नहीं ये दे सकता, मैं आपको 10 गुना करके दे दूंगा। सो मैं आपको एक लाइक सिंपल अ रियलिस्टिक मैं एक कंजर्वेटिव रियलिस्टिक साइड। मिनिमम फिगर दे देता हूँ। इससे ऊपर आ जाए दैट इज चेरी ऑन द एडवांटेज, Right. मतलब चेरी ऑन द टॉप, इट्स अ एड ऑन एडवांटेज। मैं आपको ये कहूंगा कि आप सिंपल इतना, जितना अगर आपने 12 लाख रुपए का एक प्लॉट लिया है, हाँ जी। तो आपको जितने साल आप लगा रहे हो वो उतने गुना कर लेना। बट आपको जो सेलिंग मिलेगी, जो एग्जिट मिलेगा, Exit. डबल तो हो जाता है कई बार, पर एग्जिट नहीं मिल रहा होता है। गुड़गांव में प्रॉपर्टी के प्राइसेस तो हाई हैं बट बायर्स नहीं है, Correct. सो एग्जिट नहीं मिल रहा होता। तो एग्जिट जो आपको मिलेगा वो 4 साल से मिलना शुरू होगा। Okay. प्रॉपर्टी के बायर्स जैसे आपने 12 लाख रुपए आज लगाए हैं, तो आप Right. 4 साल बाद उसको 48 लाख लेके एग्जिट कर सकते हो। दैट्स अ Wow. मिनिमम कॉस्ट आई एम गिविंग In 4 years. इन 4 years, दैट्स अ मिनिमम कॉस्ट। मतलब एक Correct. एवरेज अगर आप वहां देखोगे तो 5,000 से लेकर 10,000 रुपए गज के बीच में प्राइसेस चल रहे हैं। और आज क्या है 5 से 10,000? हाँ, एक एवरेज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। सो हरनीत, ये तो आपने मुझे बताया कि 12 lakhs में हाउ कैन वी एंटर द रेसिडेंशियल मार्केट। नाउ अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कमर्शियल में इंटरेस्टेड हैं, व्हाट अबाउट देम? So अभी as of now outside SIR we don't have any project as of now available जो commercial में है। But मेरी कुछ commercial lands अपनी भी हैं and that too inside SIR। जैसे जैसे गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलता जाएगा we'll come up with some good malls। राइट। मुझे पता है कमर्शियल वाले सिर्फ कमर्शियल करते हैं और जी। सिर्फ कमर्शियल के लिए अट्रैक्टेड होते हैं। सो ROIs जो हमको कमर्शियल में मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि गुड़गांव में रेजिडेंशियल में नहीं मिली, हमको रेजिडेंशियल में मिली। बट समहाउ जो कमर्शियल का जो एक चार्म है, वो 20% जो टारगेट ऑडियंस कमर्शियल की है उनको भी मिलेगी, बट दे हैव टू वेट समवेयर। ओके। थोड़ा सा आपको SIR के अंदर का वेट करना पड़ेगा। सो कमर्शियल पार्ट्स ब्लू कलर के दुलेरा मैप में दिख रहे हैं, विच वी कॉल इट एज सिटी सेंटर्स। ओके। तो अभी आपको ऑनेस्टली बताऊं तो सिटी सेंटर्स में इस टाइम पे स्कैरसिटी है लैंड की। अच्छा। राइट, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ। मतलब आज मेरे को दोबारा सिटी सेंटर के अंदर या वो ब्लू पार्ट्स में लैंड लेनी है तो मेरे को फाइट है। रेजिडेंशियल में लैंड्स मिल जाती हैं, एवरीवन इज सेलिंग। बहुत लोग अच्छे लेवल पे भी सेल कर रहे हैं और छोटे लेवल पे भी सेल कर रहे हैं। बट अगेन कमर्शियल में इस टाइम पे लैंड्स मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और दो आई हैव गुड लैंड बैंक अवेलेबल, बट अगेन कुछ हम सेल भी करना चाहते हैं, कुछ हम अपना भी लेके आना चाहते हैं। बट अगर मार्केट की बात करें तो सिटी सेंटर में लैंड मिलना थोड़ा सा टफ है। ओके। सो नाउ लेट्स गेट ऑन टू योर प्रोजेक्ट। आप अपने कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। व्हाट आर योर प्लान्स? हमारे जो व्यूअर्स हैं, इफ दे वांट टू बाय एंड बी एन इन्वेस्टर इन योर प्रोजेक्ट, सो प्लीज टेल अस अबाउट 7 वंडर्स। So first of all, 7 Wonders is my project name, and my firm name is KNT. राइट। So 7 Wonders हम एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं। जो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, दैट इज लोकेशन। जो अच्छा। मैंने अपने 16-17 साल के करियर में सीखा है, इफ यू हैव अ गुड लोकेशन you'll half sold। दैट्स ट्रू। तो आपका आधा माल वैसे ही बिक जाता है, आपकी आधी इन्वेंट्री वैसे ही निकल जाती है। सो द ओनली प्रोजेक्ट इन होल धुलेरा विच इज बैंग ऑन 250 मीटर वाइड रोड, दैट इज अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे, इज माय प्रोजेक्ट। वाओ। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। Right. आई एम नॉट ऑन एनी इंटरनल रोड, आई एम नॉट ऑन एनी स्टेट हाईवे, हाँ जी। आई एम ऑन अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे 250 मीटर वाइड रोड के ऊपर मेरा प्रोजेक्ट है। I am coming up with 7 acres of land. 7 acres. Yeah. So there are total 145 plots in Okay. which we are coming up with different sizes. Minimum size 125 गज का शुरू हो जाता है जी। and the maximum size we have is 350 गज. राइट। So initially हमने भी सोचा कि हम भी कुछ क्लब लेके आए, जैसे हमने गुड़गांव में देखा है, हमने गुड़गांव Right. का चाम देखा है। But very soon we got to know that कि अभी अगर हम इतना सारा कुछ ले आएंगे and then the prices will go up for a नॉर्मल प्लॉट, हाँ। तो मेरे को थोड़ा टफ होगा सेल करने में। करेक्ट। सो क्विक सेल चाहिए धोलेरा में, ताकि आपको compete करना पड़ेगा जो बाकी लोग हैं। नहीं तो 99% क्वेश्चन ही यही है कि अगर आप इतने में दे रहे हो तो मेरे को तो 4 लाख में भी मिल रहा है, 5 लाख में मिल रहा है। जी, जो मैंने काफी सुना भी है दैट यू हैव अ प्राइस रेंज ऑफ अबाउट 9 to 10,000 per square feet। एग्जैक्टली मेरी 9,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड की प्राइसिंग शुरुआत है। बट अगेन मैं कोई स्कीम के साथ नहीं आ रहा। अच्छा। आई एम नॉट कमिंग with any assured return, any buyback, any
MLM स्कीम्स कि हम्म। मैंने कुछ सुनने में आया, एक बहुत रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने बताया, उसने 4 प्लॉट्स बेचे, उसके नीचे एक लड़के ने बेचे, तो तब भी उसको पैसा जाया, तब फिर उसने उस एश्योर्ड रिटर्न भी बिल्डर ने 18% दिया। वाओ। मैंने कहा यार ये मतलब हम, जो एक समझदार होगा वो अट्रैक्ट नहीं होगा, वो समझेगा कि कैच कहाँ है। करेक्ट। सो द इंटेंशन इज नॉट टू डेवलप, दे आर नॉट हेयर फॉर अ लॉन्गर टर्म। राइट। और अभी एक दुलेरा में एक ऐसा केस भी आया एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन अगेंस्ट इट। ओके। बहुत मतलब एक ऐसी सेम MLM स्कीम के अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट बना था एंड गवर्नमेंट ने उसके सारे एसेट्स वापस ले लिए हम्म। एंड दे हैव उसके ऊपर जितनी भी जो लीगल एक्शंस लेने हैं उस पर काम चल रहा है। सो अच्छा। गवर्नमेंट इज अभी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, तब भी गवर्नमेंट उस पर एक्टिव है, ध्यान दे रही है कि वो दे रही है। हम्म। सो डोंट go with any schemes inside that, go for a good location, राइट। be it me, अगर मेरे जैसी कोई और अच्छी लोकेशन किसी को मिलती है तो कहीं पे भी लो, बट लो अच्छा प्रोडक्ट, सो दैट कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब 5 साल बाद अब जो वो शहर बस जाएगा, यू विल कम अप विद कि आई एम ऑन गोल्फ कोर्स रोड, आई एम ऑन MG रोड, आई एम ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, आई एम ऑन SPR रोड। हम्म। ये एक वो बात है कि 2002 में सेक्टर 46 और DLF फेज 1 के प्लॉट का रेट सेम था, सेक्टर 46 That's हुडा so के true. एंड आज की डेट में सेक्टर 46 के हुडा का प्लॉट और DLF फेज 1 के प्लॉट के रेट में 1.5 लाख रुपए गज का डिफरेंस। Day and night difference. सो Correct. उस दिन भी किसी ने नहीं सोचा कि यार प्लॉट ही तो मिल रहा है गुड़गांव में। बिल्कुल। आज वो डिफरेंस समझ आता है जब हमको समझ आता है कि हमने क्या प्लानिंग्स और हमने क्या लोकेशन डिसाइड की थी। करेक्ट। सो आई एम बैंग ऑन अहमदाबाद दुलेरा एक्सप्रेसवे। जी। मेरा बेस्ट फैक्टर एक अपर एज ये भी मिल जाता है मेरे हमारे साथ इन्वेस्ट करने का कि आई एम नॉट इन गुड़गांव, आई एम इन अहमदाबाद एज वेल। मेरी 2 ब्रांचेस हैं। करेक्ट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करुणा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हम सारे गुड़गांव वासी हैं। बिल्कुल। हमने यहाँ से शहर से शुरू किया अपना रियल एस्टेट। जी। तो विल कम बैक टू गुड़गांव आफ्टर 1.5 ईयर। करेक्ट। लेट्स से अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट आता है, राइट। सो ऑन दैट डे अगर मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ अहमदाबाद है तो मेरी टीम नहीं सोचती होगी, मेरी टीम का विजन गुड़गांव में भी करने का वापस होगा। राइट। क्योंकि द वे वी आर एंड हमको जो एक चाम गुड़गांव का पता है वो है। बिल्कुल। तो उस केस में मैंने अहमदाबाद अपनी एक टीम, और आज से नहीं 2 साल पहले से ही हमारी एक ब्रांच ऑलरेडी सेटअप है। आज किसी ने मेरे से 10 प्लॉट लिए, अगर वो 2 साल बाद फ़ोन करेगा और उस दिन मैं गुड़गांव में बैठा हूँ तो मैं कहूँगा मैं कैसे जाऊँ आपके साथ, आई एम बिजी इन सम DLF अलॉटमेंट हेयर। राइट। तो उस टाइम पे मैं कतराऊंगा जाने में या मैं फोकस नहीं होऊंगा। तो उस केस में मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मैंने पहले से ही अपनी एक टीम सेटअप की है दैट इफ एनीबडी वांट्स टू गो देयर, हाँ जी। उसको सेम सर्विसेज जो आज बाय करने में मिल रही है उस टाइम पे मिलेगी। इवन 4 साल बाद 48 लाख में जब वो बेचने जाएगा तब भी मिलेगी। हम उसको एडजस्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे द वे सेंट्रल पार्क डू कि हम अपने ही थ्रू सेल करवाएं। लवली। सो ये एक सिनेरियो 7 वंडर्स का हम लेके आते हैं। 7 एकर्स लैंड, bang on Ahmedabad Dholera Expressway, 145 plots, 125 to 325 square yards, starting range from 11 lakhs. Wow. इसके अलावा पेमेंट प्लान्स, वी हैव डिफरेंट पेमेंट प्लान्स एज पर द अवेलेबिलिटी। तो डिलीवरी की बात करूँ तो मैं 1 साल के अंदर अंदर डिलीवर कर दूंगा। दो आई एम फास्ट, वहाँ पे लोग आराम से 3 साल में भी दे रहे हैं क्योंकि उस हिसाब से डेवलपमेंट आ रही है। बट आई वॉन्ट टू गेट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे पे हूँ। मेरी सारी प्लग एंड प्ले मेरे को वो मिलती हैं। इवन द सीवर लाइन, इवन द गैस पाइपलाइन, इवन द इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन, जो लोगों के प्रोजेक्ट्स में है ही नहीं। अच्छा। ना अप्रूवल मिलेगा क्योंकि अभी तो वो अंदर इंटरनल रोड्स पे हैं। करेक्ट। वहां तक गवर्नमेंट को बसाने में टाइम लगेगा। बट सिंस आई एम ऑन बैंक ऑन अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे, तो मेरे को सारी चीजें ऑन प्ले फटाफट मिलती हैं। सो मैं चाहता हूँ कि सिंस इट इज माई पायलट प्रोजेक्ट, तो मैं चाहता हूँ उसको अच्छे से डिलीवर करके लेके। राइट। सो दिस इज योर पायलट प्रोजेक्ट, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स। तो आप अभी और कोई लॉन्चेस प्लान कर रहे हैं? सो देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाइंड अप, बट मैं जल्दी नहीं करने वाला। ओके। सो मैं वो नहीं चाहता कि अब अगला माल बेचो, फटाफट बेचो। आई विल कम अप विद न्यू थिंग्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट सिटी और दैट एरिया। राइट। लेट्स से अभी एयरपोर्ट आने वाला है जी, तो मेरे पास एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने लैंड पड़ी हुई है। सो हाउ फार इज 7 वंडर्स फ्रॉम द एयरपोर्ट? So 7 Wonder is basically around exactly 5 kilometers from airport. Wow. And Pipli Junction से बात करें तो it is exactly 3.5 kilometers. Lovely. So hardly 10 to 15 minutes. Hardly. टाटा से अगर कोई निकलेगा, जब मैंने पहले आपको जिक्र किया कि वो इंटरनल रोड से नहीं जाएगा, कोई साइबर सिटी से निकलेगा तो वो हाईवे के ऊपर रहना पसंद करेगा। Correct, even me. So same way में अगर कोई टाटा से निकलेगा आने वाले 2 साल के बाद, तो सीधा हाईवे से कनेक्ट करके मैं अपने प्रोजेक्ट पे उतर जाएगा। कोई इंटरनल रोड पे नहीं जाना। He has to come, he or she has to come from 250 meter wide road, wow, जो गवर्नमेंट बना रही है। Okay.
So now I have a very interesting question. अगर कोई इन्वेस्टर है और वो कंफ्यूज्ड है whether to buy a 500 square yard plot in Goa versus buying a 500 square yard plot in Dholera, what should be their choice and why? So इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. हाँ जी. 500 गज गोवा, 500 गज धोलेरा, 500 गज अयोध्या, 500 गज पुणे, 500 गज मुंबई, 500 गज गुड़गांव. Wow. आप Okay. किसको करोगे? I don't know. I mean, I can go with Dholera since you've told me. But अगर Like, मैं like, I would love to go probably in Goa because Then you know. I have taken the names of city, Gurgaon, Mumbai, Pune as well. तो Yeah. धोलेरा कहना तो गलत हो जाएगा मेरे को लगता है. तो Goa is something क्योंकि वहाँ पे beaches है and it's so nice. So from an investor point of view, अगर आप किसी में, so I am a core commercial guy. So उसमें क्या अच्छा. होता है कि हम दिल नहीं लगाते हैं किसी से. It's like a financial product. फाइनेंशियल प्रोडक्ट, अगर आज की डेट में मैं वहां पे आपको दिल नहीं लगवा सकता. Correct. Because you are not going to shift there until unless True. the city is going to get developed. हाँ. Right. अगर अहमदाबाद में भी आज से 10 साल पहले कोई नहीं जाने को राजी था. जब जैसे जैसे अहमदाबाद इतना अच्छा डेवलप हो गया और सब लोग वहाँ पे कॉस्मो जो पीपल हैं वो बहुत लोग आ रहे हैं, मिलेनियल्स बहुत अब एंटर कर रहे हैं अहमदाबाद एरिया में भी. Right. Because of gift city and the infrastructure they have given and the comfort they have given to the people. And also, I was reading in the last 1 year, it has given approximately 48% of growth in Ahmedabad. Like real Exactly. estate has grown that Right. much. Right. It is true. It is just because कि गुजरात का एक लौता पहला एक शहर है जिसमें बाहर के लोग आते Yeah. हैं. Right. जो गुजरातीज हैं, मोर ओवर जो हमारे इंडिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लैंग्वेज Right. प्रॉब्लम भी है, वो भी गुजरात में नहीं है. अच्छा. वो भी गुजरात में नहीं है. मतलब दे विल नॉट फोर्स यू टू स्पीक इन गुजराती. Wow. सो ये एक मेजर अभी थोड़ा सा करंट सिनेरियो में चल रहा है. थर्ड वे जो गुजरातीज मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक टोटली बिजनेस माइंडेड है. Correct. They are very sharp. They're very Correct. sharp. So they know how to deal with it. They know how to generate money. Yeah. And 48% it's just a start. Wow. It's just a start. अभी जैसे जैसे infrastructure improvement आएगी, क्योंकि it's not just a fluke they are coming up with. It's backed by it's totally the back is by the central government and the state government. अच्छा. तो जो डबल Okay. इंजन पावर है वो वहाँ पे एक्चुअल में काम करती है. हाँ जी. So coming back to the question, so between 500 a 500 square yard plot in Dholera versus So your developed answer is cities. your answer is Goa. So I'll compare. So हाँ. 500 गज का गोवा में आज आप प्लॉट लेने जाओगे, सबसे पहले वो थोड़ा कॉस्टली करेगा धोलेरा से. So अगर तो एक एग्जांपल देख के समझाइए कि इफ लेट्स से जैसे कि आजकल मोपा के आसपास काफी हलचल है True, वेयर इन true. बिग डेवलपर्स आर देयर Exactly. लाइक लोधा एंड ऑल, तो आज हमें 80 लाख 1 करोड़ में एंट्री मिल जाती है. सो इफ आई एम लाइक दैट इन्वेस्टर कि मेरे पास कैपिटल है 500 स्क्वायर यार्ड का, तो मैं क्या मेरे मन में होना चाहिए सो टू मेक अ राइट डिसीजन? सो ठीक है, अब मैं आपको दो पर्सपेक्टिव से बताता हूँ और फिर उसके अंदर फैक्टर्स बताता हूँ. पहला पर्सपेक्टिव है जो इन्वेस्टर का है और देन फिर एंड यूजर. राइट. सो अगर आप एंड यूजर हो तो आपको पहली बात तो जो मैंने 3 नाम और लिए, मुंबई, पुणे एंड गुड़गांव, तो आपको इसमें जाना चाहिए क्योंकि आप एंड यूजर हो. आपको एक डेवलप्ड सिटी चाहिए, बसावट चाहिए, बसावट चाहिए, स्कूल कॉलेज चाहिए, स्कूल कॉलेज चाहिए, office. मेरे बच्चे की भी फैमिली एंड यूजर हो आप. राइट. तो अगर आप वापस आते हो कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर में 2 कैटेगरीज आ जाती हैं. गोवा आ गया, अयोध्या आ गया एंड हमारे पास धोलेरा आ गया. गोवा एंड अयोध्या बोथ आर टूरिज्म डिपेंडेंट सिटीज. अभी लास्ट हमारा जो न्यू ईयर निकला है, ईयर एंड निकला है, उस पे गोवा वाज नॉट गुड इन टूरिज्म. नॉट एट ऑल. ये There सारी was a जगह lot of news है. backlash around it. बैकलैश एंड नॉर्थ इंडियंस ने काफी इन्वेस्टमेंट वहां कर दी है. जी. So और now- लास्ट 2 इयर्स में ज्यादातर मैंने देखा है, लास्ट 2 to 3 years. बिकॉज गोवा गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ओपन कर दिया था कि बाहर के लोग अब इसमें एंटर कर सकते हैं और ओपन Correct. कर दी थी एंड एयरपोर्ट मोपा बना दिया. Correct. तो उसके आसपास लोगों ने वहां पे डालने लग गया. जी. बट अगेन कहीं ना कहीं वो टूरिज्म डिपेंडेंट है. मैंने पहले भी बोला वो स्केलेबल नहीं होगी करेक्ट. और जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी हम्म. तो टूरिज्म तो एक फिक्स टूरिस्ट तो फिक्स आने हैं ना. करेक्ट. तो वो एक साल में एक सीजन होता है जब वो आते हैं मेजरली Right. और बाकी स्टेगनेंट रहता है. हाँ जी. बीट मसूरी, बीट नैनीताल, बीट हमारा लोखंडवाला, बीट हमारा लोखंडवाला कह रहा हूँ, बीट लोनावला, करेक्ट. जो बीट हमारा गोवा. हाँ जी. सो एक है अयोध्या में भी आप जब अभी हमारा जो कुंभ का मेला हुआ हम तब जाते हैं, या हमको हाइप मिली. अब आज की डेट में अभी नॉर्मल आया वहाँ. बिल्कुल. सो एक फ्लक्चुएटिंग है, ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है. राइट. बट आप एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड हो तो आपका ग्राफ ऊपर ही जाएगा, करेक्ट. चाहे कोविड आ जाए,
कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन वापस आ जाए, करेक्ट, चाहे हमारा मार्केट स्लो हो जाए, चाहे हमारा इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो हो जाए, एम्प्लॉयमेंट विल बी देयर एंड विल बी देयर। मतलब कोविड में जब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो वो छोड़ के वापस गए एंड देन दे आर बैक नाउ। एवरीवन नोज दैट ये सेटल होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब इवन कंपनीज ने जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अब सब हटा दिया तो पीपल आर नाउ बैक। लोगों को वर्क फ्रॉम होम की आदत पड़ गई थी बट नाउ दे आर बैक। right. So if we have to summarize it, according to you, two major reasons 500 square yard of Dholera would be better than a 500 square yard of Goa. Again, I am saying, so don't go for tourism dependent cities, go for employment generated dependent cities. Right. ठीक है, प्लस एम्प्लॉयमेंट अपने आप आ रही है या गवर्नमेंट लेके आ रही है। Okay. जब गवर्नमेंट का ही प्लान है, विजन है वहां पे लाने का, तो शहर ऊपर आना ही है। जब गवर्नमेंट का ही प्लान था साइबर सिटी बसाने का और IMT मानेसर बसाने का, तो आना ही है ऊपर। इट माइट टेक टाइम बट डेफिनेटली इट विल कम आउट। यू आर सेफ, योर मनी इज टोटली सेफ। तो Right. 500 गज ढोलेरा इज गोइंग टू बी इन अ लॉन्गर टर्म ऑलवेज ऑन अ हायर एंड। आप चाहे गोवा ले लो, चाहे आप फिर कहीं पे भी ले लो, एंड द जो आप गोवा या अयोध्या में लगाओगे उसके हाफ प्राइस में 500 गज में ढोलेरा में आज आपको मिल जाए। What is the ticket size of 500 square yard? So it all depends on outside SIR and inside SIR। अगर आप outside SIR की बात करते हो, so मैंने आपको बताया 5,000 से 10,000 रुपए गज के बीच के प्राइसेस चलते हैं, Correct. डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। इफ यू आर चूजिंग अ हाईवे लोकेशन, 500 गज का बेयर मिनिमम में रेफरेंस, अगर मैं हायर साइड में 10,000 भी ले लूँ तो 50 लाख में प्लॉट आ जाता है। Wow. So that too with all the approvals, that too with all the things you have lined up। जैसे मैंने बताया, मेरे को मेरे प्रोजेक्ट में इजीली प्लग एंड प्ले मिल रहा है, हाँ जी। तो आपको भी मिल सकता है। अगर आप लोअर साइड पे देखना चाहते हो 500 गज का, अगर किसी को मैं अट्रैक्ट करने की कोशिश करूं जो हम नॉर्मली लोग करते हैं रियल एस्टेट में, तो सिर्फ 25 लाख में भी आ जाता है जी। Wow. So in a decent place, I can get a 50 lakhs में एक अच्छा 500 square yard डेफिनेटली plot, a park facing, a good location. डेफिनेटली। और यही आप अयोध्या और गोवा को करोगे तो आपको कहीं हायर प्राइसेस मिलेंगे। Right. सो डेफिनेटली द आंसर इज 500 स्क्वायर यार्ड्स ढोलेरा फॉर मी। बट अगर जो अभी नहीं रियलाइज कर पा रहा, सूनर और लेटर आपको भी ढोलेरा आना ही पड़ेगा। I'm sure, क्योंकि I can imagine अगर हमें कोई 20-25 साल पहले बोलता that गुड़गांव will become what it is today, कि DLF phase 1 में या DLF phase 5 में आज कितना 10x हो चुका है प्राइस, हम कभी बिलीव नहीं करते। And especially I think post pandemic, the kind of rally we have seen, The good jump we have got. it's unbelievable. It's tremendous. It's tremendous. And I think the reason why यहाँ पे अब घर और महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई नया डेवलपर आता है, वो नई लैंड लेगा तो houses are going to be expensive. Exactly. क्योंकि आप समझो ना, डिमांड तो क्रिएट हो रही है ना, हर साल लोग हायर तो हो रहे हैं ना कंपनी में। द कंपनीज आर एक्सपैंडिंग ना, द इकोनॉमी इज एक्सपैंडिंग, द इकोनॉमी इज गोइंग ऑन मतलब आज तक का इंडिया का सबसे अपर एज है इस टाइम पे इकोनॉमी। जी। सो हम हर रोज पढ़ रहे हैं हमारी इकोनॉमी जापान से भी ऊपर हो गई है, इससे हो गई। द वे इकोनॉमी इज एक्सपैंडिंग, द कंपनीज आर एक्सपैंडिंग, द बिजनेसेस आर एक्सपैंडिंग, कंपनीज वांट टू टेक न्यू स्पेसेस, मोर स्पेसेस इन, तो वो उस अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा है। एंड द डिमांड इज क्रिएटिंग, तो ऑब्वियसली सप्लाई का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। राइट। सो ऑल्सो आई वांटेड टू आस्क यू कि ढोलेरा में हम क्या प्रोजेक्शन देख रहे हैं, किस हाउ मेनी लाइक व्हाट्स गोइंग टू बी द पॉपुलेशन ऑफ पीपल स्टेइंग देयर, और कितने टाइम में हम देख पाएंगे वो? सो इनिशियली आपको 2 साल के अंदर थोड़ा सा हिट मिलेगा। अच्छा। जो थोड़े लोग नजर आने लग जाएंगे आपको रहते हुए या आते जाते हुए। राइट। द वे गुड़गांव वाज कि इनिशियली गुड़गांव में भी लोग रहना नहीं चाहते थे, पीपल वुड लव टू कम फ्रॉम दिल्ली। हाँ जी। और यहाँ पे कॉल सेंटर कल्चर, आई रिमेंबर एग्जैक्टली a lot of companies, GE and I'm forgetting the names. Genpact was the first name. Genpact and American Express आया था, and that's how people started coming here. हम डरते भी थे आने में क्योंकि very less people used to be here. Same with the case of ढोलेरा। Initially लोग नहीं आएंगे क्योंकि जो गुजरात के लोग की यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लगेगी या जॉब लगेगी, they will love to travel from Ahmedabad because it is a developed city. Right. तो उनको सारी amenities और आज को सब कुछ मिल रहा है। जो धीरे धीरे समझ आएगा तो मोर ओवर आफ्टर 5 years 7 years डाउन द लाइन आपको एक अच्छी हैबिटेशन दिखेगी। एंड टू गेट अ डेवलपमेंट लाइक गुड़गांव और दिल्ली, यू हैव टू वेट फॉर अनदर 10 to 12 years। 10 to 12, बट तब तक पूरी बसावट वी कैन सी।
एक्चुअली में आपको दिखेगी, क्योंकि उस टाइम तक तो गवर्नमेंट अपना TP6 का डिलीवरी का प्लान करती होगी। राइट 15 साल का जब होराइजन है, 2041 का प्लान है, हाँ तो गवर्नमेंट 2041 तक जब होराइजन दिखती है, तो तब तक हमारे बाकी के टीपीज और बाकी के जो हमारी फेजेस हैं उसमें जो डिलीवर्ड हो चुके हैं उसमें लोग बस चुके होंगे, और Okay. गवर्नमेंट उनमें रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट्स भी खोल चुकी होगी। हम्म अभी असली बूम आना बाकी है, अच्छा तभी आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। जिस दिन एक बड़ा नाम आ गया, लेट्स से मैं बोल दूं अदानी इज कमिंग अप विद अ 12 एकर्स प्रोजेक्ट इन TP3, लाइक अ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लाइक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने खोल दिया, उस दिन आप फिर वो अचीव जो आप आज 9-10 हज़ार रुपए गज की बात कर रहे हो, यही से 4 से 5 साल पहले हम 3 से 4 हज़ार रुपए गज की बात करते थे। करेक्ट सो उस दिन पे फिर आप मतलब वो कैच मी इफ यू कैन वाली बात हो जाएगी। लाइक हाउ DLF इज टुडे दैट इज हाउ DLF मतलब 2019 तक भी DLF में कोई थोड़ा बहुत ले सकता था, करेक्ट बट आफ्टर कोविड जो जंप हमको पिछले 10 साल में गुड़गांव में नहीं मिला था, वो हम वेट कर रहे थे, वो एक्चुअली में आया और वो आना ही है। सो आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क यू, क्या आप HNIs को रहता हुआ देखते हैं इन धोलेरा? लाइक डू यू डेफिनेटली थिंक? डेफिनेटली नॉट सूनर, बट एज एन एंड यूजर अगर वो देखते हैं तो डेफिनेटली, बिकॉज आधी से ज्यादा कंपनीज तो आपकी बाहर की कंपनीज के साथ टाई अप में होंगी। So you तो see a आपके- lot of expats coming here? डेफिनेटली तभी मैं कह रहा हूँ, इवन अभी भी आ रहे हैं। अगर आप लेटेस्ट न्यूज पढ़ोगे हाँ जी तो मिस्टर वोंग वाज देयर फ्रॉम जापान टू ओह चेक टाटाज प्रोडक्ट की क्या वो कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सब कुछ। एवरी सिंगल मंथ आपकी कोई ना कोई, कभी गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल जी की विजिट है, समटाइम्स मिस्टर नितिन गडकरी इज विजिटिंग, समटाइम्स मिस्टर हमारे PM नरेंद्र मोदी जी इज विजिटिंग। सो गवर्नमेंट, आप कहीं ना कहीं कभी धोलेरा सर्च करके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो निर्मला सीतारमन इज पुशिंग अप, सो दे नो द डेफिनेट ट्रैक वी शुड कम ऑन इज धोलेरा। और HNIs ने आना ही आना है, बट नॉट सूनर। मैं आपको जल्दी कह दूंगा आ जाएंगे 5 साल डेफिनेटली। आप जिस दिन आपकी अच्छी बसावट आने लग जाएगी, 50% ऑफ द सिटी विल गेट डेवलप, आपके पास अपने पास ही लोग होंगे, डेफिनेटली होंगे। इज देयर एनी राइट नाउ, जैसे आप एक डेवलपर हैं, तो वहाँ पे किस तरीके के डेवलपर्स अभी हम देख सकते हैं फॉर द इन्वेस्टर्स टू नो? So big brand names like Tatas, Adanis, Ambanis and जो भी DLF, हम जितने नाम सुने, MR, they are not there as of now इन रेसिडेंशियल? in residential। हाँ जी। जो मैं अभी इंडस्ट्रीज को हटा देता हूँ, इन हाँ। रेजिडेंशियल की बात करते हैं, तो रेजिडेंशियल में अभी वो नाम नहीं है। हाँ जी वो दे आर ऑल्सो वेटिंग कि गवर्नमेंट जब ओपन करेगी, बिकॉज दे विल कम विद द वेरी गुड प्लान, दे विल कम विद गुड प्रोडक्ट्स, गुड लैंड बैंक। तो उस केस में अभी जो आपको है उसमें हमको जो एक मिड लेवल हमको जो डेवलपर्स मिलते हैं लाइक मी, हाँ वो आपको मिलते हैं। हाँ और जी। बट गो विद द सेफर गाइज, हाँ वहाँ पे थोड़ा सा धोखाधड़ी भी है, सिंस हाँ हमारे यहाँ पे अभी काफ़ी ब्रांड्स वो भी आ गए हैं जिनको जो स्कीम्स निकाल रहे हैं। तो मैं भी जब लैंड बैंक देखता हूँ और अपनी लैंड बैंक देखता हूँ और जब वो देखता हूँ उनकी स्कीम्स, तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को समझ आता है कि कैच है जो ये स्कीम्स निकाल के। सो कंटिन्यूइंग दैट, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से स्कैम्स से इन्वेस्टर को बचना चाहिए इन धोलेरा? फर्स्ट ऑफ ऑल बायबैक एंड एश्योर्ड रिटर्न। बायबैक एंड And अश्योर्ड assured रिटर्न। return। ओके डेफिनेटली एश्योर्ड रिटर्न रेजिडेंशियल में सबको पता है, इवन गवर्नमेंट ने एश्योर्ड रिटर्न्स और ये MLM वाली स्कीम्स चेन जोड़ देते हैं, लाइक द वे एमवे डज दैट। हाँ ठीक है ना, ओके एमवे की जगह आप जोड़ो, अपना अगला जोड़ो, अपना जी। अगला जोड़ो। तो गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को MLM से पहले ही 2016 में एक नोटिस दे दिया था सबको कि आपको हटाना चाहिए। इवन MLM itself इज अ रॉन्ग प्रोडक्ट कि आप चेन के थ्रू बेचते हो, सो इट्स अ मार्केटिंग, माउथ मार्केटिंग। करेक्ट सो आप किसी के ट्रस्ट पे हो, वो किसी के ट्रस्ट पे हो, वो किसी के ट्रस्ट पे, अंटिल अनलेस आप प्रोडक्ट को चेक नहीं कर रहे हो, आप लोकेशन को चेक नहीं कर रहे हो। राइट सो आपको इन स्कैम से बचना चाहिए। हाँ गो फॉर अ गुड लोकेशन प्रोडक्ट, चाहे वो महंगा है, आप नहीं ले सकते, दैट्स अ डिफरेंट टास्क, राइट बट गो फॉर अ गुड प्रोडक्ट, गुड लोकेशन प्रोडक्ट। आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 7 साल 5 साल बाद जब एक्चुअल में आओगे, तब आपको समझ आएगा कि व्हाट इज इट इज ऑल अबाउट। राइट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी यू नो लाइक ऑल द प्लेसेस कि हम स्कैम से किस तरीके से बचें। बिफोर आई फिनिश आवर वंडरफुल पॉडकास्ट, कुछ ऐसा है जो आप हमारे इन्वेस्टर्स को एडवाइस करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, सो दैट यू नो ऑल्सो प्लीज यू नो आई वुड लाइक टू टेल माई व्यूअर्स यू कैन गेट इन टच विद अस एंड इफ यू वांट टू बाय और इवन अगर आप कोई सजेशन या एडवाइस चाहते हैं, आई एम श्योर हरनीत इज अवेलेबल फॉर यू। Harneet, any parting advice for our investors
कि क्या ध्यान में रखें एंड अगर कोई उनके पास अभी भी इसके बाद भी अगर कोई शंका या डाउट बची है, सो व्हाट शुड दे टेक केयर ऑफ? So we have talked about our Seven Wonders product today. We are into bulk land buying. We are into commercial lands. राइट. So आपको कोई भी bulk land, residential, commercial, industrial कैसी भी चाहिए होगी. So I'll be the happiest person to serve it. इसके अलावा हमारा प्रोडक्ट्स अलग बैक टू बैक आ रहे हैं, बट मैं आई अश्योर यू कि हम अपने सबसे बेस्ट लोकेशंस लेके आएंगे, क्योंकि मैं उसमें बहुत चूजी और इस टाइम पे बहुत ध्यान से लैंड बाय कर रहा हूँ. थर्डली जो आप सबको ध्यान रखना चाहिए, गो फॉर धोलेरा, बीट एनीबडी, बीट चाहे किसी से ले रहे हो, बस ध्यान आपको यही रखना है कि स्कैम्स, MLM स्कीम्स, एश्योर्ड रिटर्न्स, बायबैक ऑफर्स, दीज आर ऑल स्मॉल टाइम गिमिक्स एंड मार्केटिंग ट्रिक्स या स्ट्रैटेजीज टू सेल सम प्रोडक्ट. आराम से लो, देख के लो, समझ के लो. व्हाट वी आर ऑफरिंग यू गाइज इज़ कि आपको अगर अहमदाबाद जाना और आपको वहाँ विजिट करनी है, सो वी आर गिविंग फ्री सर्विसेज ऑफ कैब फैसिलिटीज़ फ्रॉम एयरपोर्ट. आप वो एक हमारे से सर्विस अवेल कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट. अच्छी प्रॉपर्टी है. धोलेरा विल बी अ नेक्स्ट लाइक दुबई. सब जैसे आप वीडियोज़ में देख रहे हो, दुबई, शंघाई, आपको ऐसा मिलेगा? नो, इससे भी बेटर मिलेगा. सो धोलेरा इज़ फॉर इंडिया. Thank you, Harneet. I think it was a lovely way to explain our viewers क्योंकि interest बहुत ज़्यादा था लेकिन doubts भी थे, but I think you helped us tremendously today. Thank you so much. My pleasure.